Everyone, so today we will analyze CMAT 2023 PYQ slot 1. Okay, so first we will solve from question starting from English, then after we will solve GK, and then we will solve innovation and business, and at the end we will solve maths and reasoning. Okay, so let's move to the English section. ओके तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 100 तक करेंगे, फिर उसके बाद 1 से लेके 40 तक करेंगे. लेट्स स्टार्ट. पिक द अप्रोप्रिएट कैटेगरी फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस. अ हॉर्स माई किंगडम फॉर अ हॉर्स. ये कौन सा सेंटेंस है? देखो ना, बार बार एक्सक्लेमेटरी साइन का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, pick the most appropriate auxiliary verb to fill in the blanks. CCTV dash been used for many years for the surveillance of public areas associated with obvious risk. So CCTV has been used. Identify the appropriate direct speech form of the following sentence. He greeted me and asked where I was going. And the correct option is 4. He said, hello, where are you going? Choose the appropriate question to follow for the statement given below. Yes, it does. So correct option is option A. Does it rain in winter? पूछ रहा है कि appropriate question चूज करना है ABCD में से, जो कि ये आंसर मतलब क्वेश्चन चूज करना है. आंसर दिया हुआ, हमें क्वेश्चन चूज करना है. डज इट रेन इन विंटर? यस इट डज. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. अ पर्सन हु डज नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट इज कॉल्ड वीगन. वो व्यक्ति जो किसी प्रकार का भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाता, यानी कि ना ही फ्लैश जैसे कि चिकन, मटन, फिश, और ना ही मिल्क, ना ही जैसे कि मिल्क और हनी, ये सब नहीं खाता, तो उसे वीगन कहते हैं. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू करेक्ट द गिवन सेंटेंस. घाना इज अ सी पोर्ट इन गल्फ एट गुइनिया. ऑन इन नहीं होगा, ऑन होगा. तो घाना इज अ सी पोर्ट ऑन गल्फ ऑफ गुइना. तो इन और एट गलत है. घाना इज अ सी पोर्ट ऑन गल्फ ऑफ गुइना. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नाउ वी हैव टू अरेंज इट. करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे पहला होगा पॉज एंड रीड इट. सबसे पहला होगा सी. देयर इज सम ट्रुथ इन द कॉमन सेइंग दैट व्हाइल clocks become attached to person, cats are generally attached to places. Then B. A dog will follow his master anywhere, but a cat keeps to the house it is used to, and even when the house changes hands, the cat will remain there so long as it is kindly treated by the new owners. Then A. A cat does not seem to be capable of the personal devotion often shown by a dog. And then D. It thinks most of its own comforts and its love is only cupboard love. So option C is the right answer. The expression he is laboring under the delusion of a serious nature suggests that. हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पिकअप करना है. तो कह रहा है कि he is laboring under the delusion of a serious nature suggests that he is committing a mistake. Next question. Choose the most appropriate option to correct the given sentence. राधा इज एज क्लेवरर एज सुधा. तो यहाँ पर जैसे एज लगता है तो हम फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं, यानी कि कंपैरिजन डिग्री का फर्स्ट फॉर्म क्लेवर होगा. राधा इज एज क्लेवर एज सुधा. नाउ वी हैव comprehension. Gandhi's greatest challenge was post-truth.
The Indian social universe was overflowing with ways of living established by powerful that inevitably oppress the powerless. In order to tackle this inequality, Gandhi changed the understanding of truth that the powerful had inherited and internalized. He dislodged truth from its long held theological location of an ultimate divine compassion. Only goodness mattered. If that quality could be inculcated, truth would take care of itself. Now, assertion, reason. Assertion. Gandhi is in experiment with truth, dislodged truth as all ultimate divine revelation. बिल्कुल सही है. Reason. He holds that the truth can be substituted with goodness and people can manage without truth. No. People cannot manage without truth. तो इस हिसाब से ये गलत है. तो ऑप्शन सी. Which of the following notions is compatible with Gandhi's idea of truth? पहला, truth is inherited and internalized. ना. Truth is ultimate divine revelation. ना. Truth is a byproduct of honesty, humanism and compassion. Correct. Truth directly corresponds with goodness. बिल्कुल सही. Option C and D. तो D. In the given passage, the term inevitably connects certainty. Inevitably मतलब जो होकर रहेगा, यानी जो certain है. तो इस हिसाब से ऑप्शन सी. मैच द फॉलोइंग करना है. फ्रेजल वर्ब और उसका मीनिंग. तो रन अक्रॉस का मतलब क्या होता है? रन अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट और फाइंड बाई चांस. बाई चांस किसी से रन अक्रॉस में मुलाकात हो गई, उससे कहते हैं रन अक्रॉस. रन डाउन. रन डाउन का मतलब होता है टू लूज पावर और स्टॉप वर्किंग. अगर हम अपना पावर लूज कर लेते हैं और स्टॉप वर्किंग करते हैं तो रन डाउन होता है. रन इनटू, टू मीट बाई चांस. रन ऑन, टू कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग. बिना रुके दौड़े जाने को रन ऑन कहते हैं. इस हिसाब से ऑप्शन बी. टू रतन बाबू द होटल सीम्ड क्वाइट एडिक्वेट. हिज रूम वॉज नॉट लार्ज बट दैट डिड नॉट मैटर. देयर वर विंडोज टू द ईस्ट एंड द साउथ विद प्लेजेंट व्यूज ऑफ द कंट्री साइड. द सर्वेंट पंच सीम्ड एन एमेबल सॉर्ट. Ratan Babu was in the habit of bathing twice a day in tepid water throughout the year, and Pancha had assured him that there would be no trouble about that. In the given passage, the phrase tepid water means tepid water का मतलब होता है lukewarm water. Tepid water means lukewarm water. Pick the appropriate meaning of the expression modus operandi. तो modus operandi का मतलब होता है बी, manner of doing things. The expression well done. Well done means that was well done. बिल्कुल सही. You would have done well. ना, गलत. You have done well सही है. You will do well गलत है. तो ऑप्शन बी, A and C only. Pick the antonym of the word adroit. Adroit का मतलब होता है निपुण. किसी चीज़ में जब बहुत अच्छे हो तो उसे कहते हैं निपुण. तो उसका उल्टा एमेट्योर होगा. पता है एमेट्योर का मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. एमेट्योर मतलब जो कच्चा है किसी चीज़ में, अभी नया. डेफ्ट का मतलब होता है चतुर. एक्सपर्ट मतलब कोई अपने फील्ड में सबसे बेस्ट है उसको एक्सपर्ट कहते हैं. स्किल्ड मतलब जो काम करता है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आता है उसको स्किल्ड कहेंगे. मतलब कैसे एड्रॉइट ही हो गया. तो एक्सपर्ट और स्किल्ड तो सिनोनिम्स हो गया. डेफ्ट मतलब चतुर होता है और इसका करेक्ट आंसर है एमेच्योर. Match the following. He succeed dash perseverance and sheer hard work. So he succeed by dint of perseverance and sheer hard work. He died fighting dash his country. He died fighting on behalf of his country. He persevered dash difficulties. He persevered in spite of difficulties. He accepted the car dash his claim of rupees 3,25,000. He accepted the car in lieu of his claim of rupees 3,25,000. तो सिंपल. तो इस हिसाब से ऑप्शन डी मैच किया हुआ देख लो. पिक सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड शिर्क. शर्क या शिर्क मतलब होता है भागना. तो सिनोनिम्स उठाना है. तो भागना यानी कि बचना, तो अवॉइड सही है. एस्केप सही है. इवेट सही है. अपोज गलत है. तो इस हिसाब से
शर का सिनोनिम्स हो जाएगा अवॉइड, एस्केप, इवेड, ऑप्शन सी कॉम्प्रिहेंशन। पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ द इमेजिनेशन एंड द पैशन. It relates to whatever gives immediate pleasure or pain to human mind. It comes home to the bosoms and business of men for nothing but what comes home to them in the most general and intelligible shapes. Shape can be a subject for poetry. Poetry is the universal language which the health holds with nature and itself. He who has a contempt for poetry cannot have much respect for himself or for anything else. Wherever there is a sense of beauty or harmony, as in the motion of a wave of the sea in the growth of a flower, there is a poetry in its birth. Which of the following expression duly corresponds with the given passage? पहला, poetry ensures for the immediate pleasure and pain experienced by the creative mind. बिल्कुल सही है. It revolves around the general and intelligible feelings of the people. बिल्कुल सही है. A contempt for poetry and self-respect are mutually compatible. गलत. It unavoidably relates to mankind's sense of beauty, power and harmony. बिल्कुल सही. इस हिसाब से ऑप्शन बी. Now let's move to GK. Statement 1. The Indus River system comprises Chenab, Jhelum and Beas. Indus River system में क्या चेनाब, झेलम और बीस होता है? बिल्कुल सही होता है. इंडस रिवर सिस्टम में 5 नदी होते हैं. कौन कौन? रावी, बीस, सतलज, चेनाब एंड झेलम. स्टेटमेंट 2. द गंगा रिवर सिस्टम कंप्राइजेज रवि, सतलज एंड कृष्णा. गलत है. गंगा में तो ना रवि है, ना सतलज है, ना कृष्णा है. बोलिए क्या क्या है गंगा के ट्रिब्यूटरीज करके कौन कौन से? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, गोमती, रामगंगा एंड सून. इसका एक ट्रिक भी था याद करने के लिए कि राम ने गुमटी में घाघरा पहनकर, रामनंद ने गुमटी में घाघरा पहनकर बहुत गंदा वाला डांस किया. तो रामनंद से रामगंगा ने गुमटी से गोमती, घाघरा पहनकर यानी कि घाघरा, गंदा यानी कि गंदक, गंदा वाला डांस यानी गंदक, गंदा वाला डांस किया. कोसों दूर से लोग देखने आए. कोसों यानी कोसी, लोग दूर से देखने आए यानी कि यमुना. आखिरी में जो बच गया यमुना. तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हेल्ड इन डैश, द कंट्री दैट टॉप्ड द मेडल टैली वाज डैश. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुआ था इंग्लैंड में और उसको टॉप किया था ऑस्ट्रेलिया ने. अरेंज द फॉलोइंग. Next question. Arrange the following constitutional provisions according to the schedules in which they are in ascending order of occurrence. तो यहाँ शेड्यूल्स दिया, उसे हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे पहले कितने शेड्यूल्स होते हैं? 12. उसको याद करने का ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम मैंने लिखा है यहाँ पे, ये इसका याद करने का तरीका. तो टी से होता है टेरिटरी, ई से इमोल्यूमेंट्स, ए से ओथ्स एंड अफर्मेशंस, आर से होता है तुम्हारा राज्यसभा से संबंधित कुछ होता है. एस से शेड्यूल एरियाज, ओ से अदर शेड्यूल एरियाज, एफ से फेडरलिस्ट, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफेक्शन लॉ, पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपैलिटीज. अपर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट यानी कि फेडरल लिस्ट हो गया. यानी कि एफ कौन से नंबर पे? 7th नंबर पे. तो ये 7th हो जाएगा. एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स एंड यूटीज इन राज्यसभा. तो देखो आर से राज्यसभा, तो 4th हो गया. प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज. शेड्यूल एरियाज यानी कि एस से शेड्यूल एरियाज. वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ये है 9 लैंड रिफॉर्म्स से संबंधित था. लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज. टेरिटरीज टी से टेरिटरीज, तो ऑप्शन ए हो गया. तो इसको अरेंज कर दो तो अरेंज करने पे आ जाएगा EBCAD, ऑप्शन सी. मैच द फॉलोइंग. हर्ब्स, डिजीज अफेक्टेड ऑर्गन, ये बीमारी है और ये कौन सा ऑर्गन को अफेक्ट करता है ये बताना है. हर्ब्स जो डिजीज है वो स्किन को नुकसान पहुंचाता है. रेबीज नर्वस सिस्टम को, एड्स
डिफेंसिव सिस्टम लिम्फोसाइट्स को, और ग्वाइटर थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, क्लियर। हर्ब्स किसको पहुंचाता है? स्किन को। रेबीज किसको पहुंचाता है? नर्वस सिस्टम को। एड्स डिफेंसिव सिस्टम लिम्फोसाइट्स को, और ग्वाइटर थायराइड ग्लैंड को। तो ऑप्शन बी। कंट्रियों से कैपिटल्स मैच करना। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना पता है सबको, कनाडा का ओटावा, यूक्रेन का कीव, फिनलैंड का हेलसिंकी। दिस इज आपसे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। विच पॉइजनस गैस लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी इन दिसंबर 1984? तो भोपाल ट्रेजेडी में कौन सा गैस लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ था। कौन सा गैस लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। 67। कजरी इज अ फोक डांस ऑफ यूपी। क्या कजरी फोक डांस है यूपी का? बिल्कुल है, सही है। कुचिपुड़ी इज अ फोक डांस ऑफ केरला। क्या कुचिपुड़ी फोक डांस है केरला का? नहीं, कुचिपुड़ी फोक डांस है आंध्र प्रदेश का। ठीक है। कथकली इज अ फोक डांस ऑफ केरला। केरला क्या है? कथकली है। चक्री इज अ फोक डांस ऑफ यूपी। चक्री हमें पढ़ाया जाना है कि राजस्थान का है। और घापल इज अ फोक डांस ऑफ राजस्थान। तो घापल क्या फोक डांस राजस्थान का? बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग इन्वेंशन इन्वेंटर। ये एक आविष्कार है, किसने किया? लिफ्ट। हर बिल्डिंग में लिफ्ट यूज होता है हम लोग काफ़ी बार चढ़े। तो लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? लिफ्ट का आविष्कार किया E.G. ओटिस ने। ओटिस ने इसका आविष्कार किया। रेडियम। रेडियम का आविष्कार किसने किया? मैरी एंड पेरी क्यूरी ने। ये तो हमें याद है, बचपन में पढ़ा है। रेडियम का आविष्कार किसने किया? मैरी एंड पेरी क्यूरी ने। बॉल पॉइंट पेन जिससे हम लोग लिखते हैं, उसका आविष्कार किसने किया? बीरो ने किया। BIRO, बीरो। C बीरो। एंड डायनामाइट, नोबेल प्राइज इन्हीं के बाद शुरू हुआ था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा शेड्यूल 22 लैंग्वेजेस से डील करता है? अभी हमने वो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में देखा था, तो वो कौन सा था? 8th। एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। 11th 12th तो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज वाला ये खत्म हो गया। 10th वाला एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये खत्म हो गया। ऑप्शन बी। हु वॉज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इन द ईयर 2022? 2022 में हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन थे? तो वो थे R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। जो अपने पास नया करेंसी बैंक नोट है, उसमें कौन कौन से फेमस चीज़ों का वो है? ठीक है, तो सबसे पहले 500 का नोट पे, अभी तो 2000 के नोट बंद हो चुके हैं, तो सबसे बड़ा नोट है 500। तो 500 के नोट पर किस फेमस चीज़ की तस्वीर लगी हुई है? तो सोचो, अपने इंडिया के सबसे जो प्रतीक है, फेमस चीज़ क्या है? वो रेड फोर्ट। तो 500 के नोट पर लाल किले की तस्वीर है। ठीक है। फिर 50 रुपये के नोट। 50 रुपये का नोट थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का दिखता है, याद होगा। उस पर किस चीज़ का फोटो है? उस पर है हम्पी विथ चैरियट का। 50 रुपये के नोट पे क्या चीज़ का फोटो है? हम्पी विथ चैरियट का। 200 रुपये का नोट, ऑरेंज टाइप का नोट होता है 200 रुपये का, और 200 रुपये का नोट पे किस चीज़ का फोटो है? सांची स्तूपा का है। 200 रुपये के नोट पे किसका है फोटो? सांची स्तूपा का। और 100 रुपये का नोट ब्लू कलर का दिखता है, उस पर किस चीज़ का फोटो है? रानी की वाव का। तो 500 रुपये के नोट पे लाल किला, 50 रुपये के नोट पे हम्पी विथ चैरियट, 200 रुपये के नोट पे सांची स्तूपा, और 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव। तो ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1। GDP is the final value of the goods and services produced within the geographical boundaries of a country during a year। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2। GDP equals the net domestic product plus depreciation on country's capital goods। सही है, ऑप्शन ए। At constant temperature, the volume of a definite mass of gas is inversely proportional to pressure is known as Boyle's law। से क्या कहते हैं? Boyle's law। तो हमने पढ़ा है कि at constant temperature, टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से। वॉल्यूम क्या है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से। इस परिस्थिति में से बॉयल्स लॉ कहा जाता है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि कांस्टेंट टी पर वीपी सिंह उल्टा बॉयल होने लगते हैं। कांस्टेंट टी पर वीपी सिंह उल्टा बॉयल होने लगते हैं। कैसे? देखो, कांस्टेंट यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर वीपी सिंह यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है? उल्टा, यानी कि इन्वर्स रिलेशन है, और वो बॉयल होने लगता है। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर
वॉल्यूम प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है, उसे बॉयल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक से ये याद हो जाएगा कि बॉयल्स लॉ कैसे कहते हैं। कांस्टेंट टी पर बीपी सिंग उल्टा बॉयल होने लगते हैं। ठीक है, तो ये याद रहेगा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ सब एक जैसा होता है, तो इसका ट्रिक से याद किया जा सकता है। द केमिकल नेम ऑफ द लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड। जो है लाफिंग गैस का जो केमिकल नेम है क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो लिस्ट 1 में ऑथर का नाम है, लिस्ट 2 में बुक्स का नाम है, मैच करना है। R.K. नारायण कौन सी किताब लिखी है, मालगुडी डेज। अरुंधति राय, उन्होंने कौन सी किताब लिखा है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। रामचंद्र गुहा, इन्होंने कौन सी किताब लिखा है, अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड। और बराक ओबामा, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। दिस इज आपसे ऑप्शन बी। विच स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, कौन सा स्ट्रेट है जो इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है, पाक स्ट्रेट। मैच द फॉलोइंग। खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था, सबको पता है 1920 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन 1905 में। अराइवल्स ऑफ क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। और गांधी रूइन पैक्ट कब हुआ था, 1931 में। गांधी रूइन पैक्ट 1931 में। इस हिसाब से ऑप्शन डी। हु डिफीटेड रानी लक्ष्मीबाई इन हर लास्ट बैटल, तो जिसने भी वो मूवी देखा है तो हमें पता होगा, जिसमें कंगना रनौत की मूवी थी, तो उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है ह्यूज रोज के बारे में। तो किसने रानी लक्ष्मीबाई को हराया, सर ह्यू रोज ने। 80 स्टेटमेंट 1। Pegasus is a spyware which can be installed on mobile phones and other devices and can steal information like passwords, messages, contacts, calendar details and even voice call। बिल्कुल सही है। Statement 2. It is developed by American cyber arms company NSO Group and is being used for spying senior government officials। तो ये गलत है, अमेरिका ने नहीं बनाया इसे, इजराइल ने बनाया। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी। अब आते हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चन पे। Dash means identifying and imitating the best in the world at specific task and function। तो benchmarking means identifying and imitating the best in the world at specific task and function। Next, estimating and financing funds requirement schemes are offered by various commercial bank, बिल्कुल सही। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। ICICI का फुल क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई नहीं है, बस आरबीआई सब नहीं काम करता है, बाकी तो इस हिसाब से ऑप्शन सी। एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स इन फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट इज रेजिंग द सीड कैपिटल। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। तो क्या क्या है, सबसे पहले एम्पैथाइज करो, फिर डिफाइन करो। पहले एम्पैथाइज, फिर डिफाइन, फिर आइडिएट करो, फिर प्रोटोटाइप बनाओ, फिर फाइनली टेस्ट करो। सबसे आखिरी में टेस्ट होगा, क्लियर है। और सबसे पहले हुआ एम्पैथाइज। दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 85 स्टेटमेंट 1। फैमिली बिजनेसेस आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू हैंड ओवर द चार्ज ऑफ देयर बिजनेस टू नेक्स्ट जनरेशन, बिल्कुल सही है। Most of the startup originate from the established family businesses, गलत। ऑप्शन सी। Following are the conventional stages of startup funding। स्टार्टअप फंडिंग का स्टेजेस बताना, तो सबसे पहले सीड कैपिटल एक्विजिशन करना होता है, फिर उसके बाद एंजल इन्वेस्टर फाइनेंसिंग करना होता है, फिर उसके बाद वेंचर कैपिटल फंडिंग करना होता है, फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ मेज़ानाइन फाइनेंसिंग और फाइनली आईपीओ इशू करना होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इस हिसाब से ऑप्शन डी। An innovation taken by Atal Initiative Mission with a purpose to encourage curiosity and innovation in young talent is Atal Tinkering Lab। Nascent entrepreneur is a person who is in the process of starting a new business। Nascent entrepreneur कौन होता है, वो व्यक्ति होता है जो एक प्रोसेस में होता है स्टार्ट करने के लिए न्यू बिजनेस। The goal should be dash for the success of the business plan। The goal should be specific for the success of the business plan। Following are the reasons for the failure of an entrepreneurial venture। क्या क्या कारण है कि एक एंटरप्रेन्योर वेंचर फेल हो जाता है, तो पहला लैक ऑफ मार्केट रिसर्च, बिल्कुल सही है।
पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल की वजह से, हाँ। पुअर मैनेजमेंट की वजह से, हाँ। जेंडर ऑफ द एंटरप्रेन्योर, जेंडर से कोई लेना देना नहीं है तो गलत है। कास्ट से भी कोई लेना देना नहीं है। जेंडर, कास्ट, ये सब सोशियोलॉजिकल टर्म्स हो गए। इस हिसाब से ऑप्शन सी। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स आर रिलेटेड टू विच एंटरप्रेन्योर? ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। तो बाइंग एंड सेलिंग किस रिलेटेड? ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर से। असर्शन, रीजन, असर्शन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI caters the financial needs of the budding industries, बिल्कुल सही है। रीजन, financial constraint is one of the biggest reason of business failures in entrepreneurship and there is a need to provide financing support to them, बिल्कुल सही। दिस इज ऑल्सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ एवरेट रॉजर्स। जो डिफ्यूजन है इनोवेशन थ्योरी का किससे एसोसिएटेड है? वो एवरेट रॉजर्स से संबंधित है। 94। असर्शन, रीजन, assertion, AICTE, UGC, Niti Aayog and commercial bank are coming up with many offerings to promote entrepreneurship, बिल्कुल सही है। Reason, government wants to develop pro entrepreneurship and supporting environment in the country, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए। The term entrepreneur has been from French verb, entrepreneur कहाँ से लिया गया? French verb से। What are the steps involved in a project approval? प्रोजेक्ट अप्रूवल में कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है? सबसे पहला होता है जनरेटिंग अ बिजनेस आइडिया, उसके बाद परफॉर्मिंग अ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फैक्टर एनालिसिस, तीसरा कंडक्टिंग अ फ्री फिजिबिलिटी एनालिसिस, एक फ्री फिजिबिलिटी एनालिसिस किया जाता है, चौथा कैरिंग आउट अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट एनालिसिस, एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट एनालिसिस किया जाता है, और फाइनली डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोटाइप फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पहले सीक्वेंस और इस हिसाब से ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 97 का, वेंचर कैपिटल फर्म्स आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड एज लिमिटेड पार्टनरशिप, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2, वेंचर कैपिटलिस्ट इज अ मनी मैनेजर हु इज इन्वॉल्व इन मेकिंग रिस्क इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इक्विटी कैपिटल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग बेटर रिटर्न, बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 98, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, अर्बनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड इज एन अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट, बिल्कुल सही। अर्बनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड इज एन इशू बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए। एंजल इन्वेस्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी अपोजिट ऑफ हेज फंड्स, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग टू द लो एंड डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन? तो लो एंड डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन कौन बिलोंग करता है? ऑप्शन बी, इट डिलीवर्स प्रोडक्ट एट अ लोअर कॉस्ट। तो इस हिसाब से हमारा 41 to 100 हो गया। नाउ इट्स टाइम टू मूव फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 40। Okay, let's start maths. Let's try to understand the question. Question क्या कह रहा है? The following table, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये टेबल से, ठीक है? तो अच्छे से टेबल देख लो। The following table shows the percentage of cricket players and scored runs by them in 3 different tournaments P, Q and R. तो एक टूर्नामेंट है P, Q, R, ठीक है? और स्कोर्ड किया गया है वो बताया जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इज 300। तो टोटल कितने प्लेयर्स थे? 300 एंड ऑल 300 प्लेयर्स प्लेड ऑल द मैचेस, और सभी 300 ने मैचेस खेला हर टूर्नामेंट में। यानी कि टूर्नामेंट पी में टोटल 300 लोगों ने खेला, टूर्नामेंट क्यू में भी 300 लोगों ने खेला और टूर्नामेंट आर में भी 300 लोगों ने खेला। बेस्ड ऑन द डेटा एंड द टेबल आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो पहले एक बार टेबल को अच्छे से देख लो। 3 टूर्नामेंट है पी, क्यू, आर। यहाँ पे लिख रहा परसेंटेज प्लेयर्स हु स्कोर रन। तो टूर्नामेंट पी में 60 रन से कितने प्लेयर्स ने बनाया? 25%। 300 के 25% लोगों ने 60 रन से अधिक बनाया। और टूर्नामेंट पी में 40 रन से अधिक कितने लोगों ने बनाया? 35% ने बनाया। और 20 से ज़्यादा कितने ने बनाया? 80%। इस तरीके आर का भी देख लो। टूर्नामेंट आर में 60 से ज़्यादा कितने लोगों ने बनाया? 20% लोगों ने, 40 से ज़्यादा 30% लोगों ने, और 20 से ज़्यादा 70% लोगों ने। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्लेयर्स हु स्कोर्ड लेस देन और इक्वल टू 40 रन्स इन टूर्नामेंट क्यू इज -% मोर देन द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु स्कोर्ड मोर देन 60 रन्स इन टूर्नामेंट पी एंड क्यू टुगेदर। तो पहले पॉज करके एक सेकंड क्वेश्चन को सोचो। जो अंडरलाइन किया उस पर फोकस करो। लेस देन और इक्वल टू 40 रन्स, ठीक है? कौन से टूर्नामेंट की बात हो रही है? क्यू, टूर्नामेंट क्यू। तो क्यू में लेस देन और इक्वल टू 40 यानी कि 40 से कम या 40, 40 से कम या फिर 40। तो
क्यू में 40 से ज़्यादा, यानी कि 40 से कम क्या हुआ, देखो ध्यान से समझो और इसको फिर इजीली हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 40 रन्स, लेस देन और इक्वल टू 40 रन्स, यहाँ पे हो गया मोर देन 40, यानी कि लेस देन 40, तो 30, मोर देन 40 30 है, तो लेस देन 40 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30 70%, ठीक है सिंपल। लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे तो मोर देन दिया हमसे पूछ रहा है लेस देन, तो इसे 100 में से घटा दो तो 70 हो जाएगा। यहाँ फोकस करो, मोर देन 16 टूर्नामेंट पी एंड क्यू टुगेदर, तो पी और क्यू मोर देन 60, तो जोड़ो तो 25 25 50, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25 25 50, तो यहाँ 70 और यहाँ 50, तो इस क्या बोल रहा है, मोर देन द नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो हमें इसका डिफरेंस के लिए परसेंटेज में बताना है, तो ये 20 आया। लास्ट नीचे वाला पी और क्यू वाला का बेस में रखते हैं, तो 20/50 × 100 तो 40, तो ऑप्शन सी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio between the number of players who scored more than 60 runs in tournament Q to the number of players who scored less than or equal to 20 runs in tournament Q and R together? समझो सिंपल, more than 60 runs in tournament Q, more than 60 runs in tournament Q more than 60 25%, यहाँ लिखो, मैंने लिख दिया 25%, आगे पढ़ो। Number of players who scored less than or equal to 20 runs in Q and R together, okay, Q and R together, Q and R together less than 20, हाँ तो more than 20, तो less than 20 कितना हो जाएगा, माइनस कर दो 40 और 30, 40 और 30 हमने लिख दिया, जोड़ दो 25 और ये 40 से 70, काट दो 5 से, तो 5:14, ऑप्शन बी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the total number of players who scored more than 60 runs in all the 3 tournament? तीनों टूर्नामेंट में 60 से अधिक कितने लोगों ने बनाया, ठीक है, मोर देन 60, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो जोड़ो इसको, 25 50 60 70, कितने हो गए टोटल, 70% हो गए, ठीक है। तो 70% किसका, 300 का 70%, 300 का 70% कितना होता है, 210, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if L is the number of players who scored more than 40 runs in tournament P and M in tournament P, फिर से पढ़ो, if L is the number of players who scored more than 40 runs in tournament P and M is the number of players who scored less than or equal to 40 runs in tournament R, then M minus L क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, number of players who scored more than 40 in tournament P, चलो देखते हैं, more than 40 in tournament P more than 40 35%, more than 40 35%, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 35%, ठीक है न, और लेस देन और इक्वल टू 40 इन टूर्नामेंट R लेस देन 40, तो मोर देन 40 है, तो लेस देन 40 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30 70, कितना हो जाएगा 70, तो हमने यहाँ लिख दिया 70। अब पूछ रहा है M माइनस L, यानी कि 70 माइनस 35 35, अब 35% किसका, 300 का, तो 35% 300 का कितना होता है, 105 होता है, तो ऑप्शन डी। एवरेज नंबर ऑफ प्लेयर हु स्कोर्ड मोर देन 20 रन इन ऑल द 3 टूर्नामेंट, तो 20 से ज़्यादा रन बनाया सभी टूर्नामेंट में, मोर देन 20, तो मोर देन 20 तो ये रहा, इसको जोड़ दो, 80 60 70 को जोड़ो, 8 6 14 और 14 7 21, 210%, 210% हो गया, और एवरेज निकाला है, टोटल 3 थे, तो 210/3 70% आ गया, तो 70% 300 का कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए, स्टेटमेंट 1, let A and B be two events such that PA is equal to 0.6, PB is equal to 0.2 and PAB is equal to 0.5, then PAC/BC क्या 3/10 होता है, चलो देखते हैं। अच्छा, ये PAC/BC का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नीदर A नॉर B अकर्स, ना ही A अकर करे और ना ही B अकर करे। देखो यहाँ जो C है, C का मतलब नॉट हो जाता है, ठीक है, ऐसे हम लोग पहले लिखते थे, ए को ऐसे लिखते हैं,
और ए नॉट को ऐसे लिखते हैं, याद होगा। तो यहाँ पे ए नॉट की जगह ए सी लिख दिया है, ठीक है। तो ए सी मतलब नीदर ए अकर, बी सी मतलब नीदर बी अकर, ठीक। तो चलो निकालते हैं। पी ए नॉट बी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। लेट ए एंड बी बी टू वेरिएंट्स पूछ क्या रहा है, नीदर ए नॉर बी अकर। तो नीदर ए को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पी ए नॉट बी नॉट क्या, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा हमने, पी ए प्लस पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए 0.6, पी बी 0.2 और पी ए बी 0.5। तो ये आ गया 0.10, 3/10, ठीक है। अब 1 माइनस 3/10 करो तो 7/10। तो यहाँ 3/10 दिया, जबकि करेक्ट आंसर क्या होगा 7/10। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू 0.2, पी बी इज इक्वल टू 0.4 एंड पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.6। देन पी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल समझो, ये पी ए बी पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो, तो 0.6 इक्वल टू पी ए, 0.2 पी बी, 0.4 माइनस पी ए बी। तो पी ए बी 0 आ जाएगा और यहाँ 3/10 दिया, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m, a and t are distinct positive integers such that m into a into t is equal to 1947, then which one of the following is the maximum possible values of m plus a plus t। देखो m a t का मल्टीप्लाई करने पे 1947 आ रहा है। तो एक काम करो, m a t पहले 1947 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो ये 3 से कटेगा, फिर ये 11 से कटेगा और फिर ये नहीं कटेगा 59। तो 3 इंटू 11 इंटू 59, 3 11 59, 3 11 59। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैट बोल रहा है। एक काम करते हैं कि सबसे मैक्सिमम हमको निकालना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो 59 इंटू 11 के तो कितना आ गया 649, और ये 3 और ये 1 1। मतलब यहाँ पे हम ये करते हैं कि m a t, m का वैल्यू ले लेते हैं 59 इंटू 11 यानी कि 649 ले लिया। ए को ले लेते हैं 3 और टी को ले लेते हैं 1। अब इस तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 653। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एस एन रिप्रेजेंट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नेचुरल नंबर एन। फॉर एग्जाम्पल S128 इज इक्वल टू 1 + 2 + 8 इज इक्वल टू 11। वट इज द वैल्यू ऑफ S 2⁶ इंटू 3⁴ इंटू 5⁵? सबसे पहला काम करो, सबका पावर 4 कॉमन निकाल लो। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 4 और जो बच गया उसको किनारे लिख दो इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 × 15 × 2 = 30, 30 का पावर 4 इंटू 5 के 20। इसको सॉल्व करो, 30 का पावर 4 यानी कितना हो जाएगा 8100 इंटू 20, ये आ गया 162। अब जोड़ दो, 6 2 8 1 9, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, अ बैग कंटेन 10 white and 10 red face masks which are all mixed up. The fewest number of face masks you can take from bag without looking and be sure to get a pair of the same color is 3. तो इस क्वेश्चन में लगेगा पिजन होल प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है। तो पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने समझ में आ जाएगा। क्या रहा है कि एक बैग है, समझ लो जो स्कूल बैग हम लोग टांगते हैं, उसमें 10 सफ़ेद और 10 रेड फेस मास्क है। कोरोना का टाइम है तो उसमें 10 सफ़ेद फेस मास्क है और 10 रेड फेस मास्क है, और वो सब मिले हुए। अब कह रहा है कि सबसे कम संख्या वाले आप कितने फेस मास्क निकालोगे बिना बैग में देखे हुए कि आपको सेम कलर मिल जाए। मतलब कितने फेस मास्क निकालोगे कि तुम जब फेस मास्क निकालोगे मतलब 2 फेस मास्क सेम कलर की होनी चाहिए। तो सपोज करो तुमने बैग, पिजन होल प्रिंसिपल क्या करता है, सपोज करो एक बैग है, उसमें 10 सफ़ेद फेस मास्क है और 10 लाल फेस मास्क है। तुमने क्या किया, बैग में हाथ डाला और तुमने पहला एक फेस मास्क निकाला। तो हम सारा सिचुएशन में निगेटिव होकर चलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर पहला ही बार में अगर आ जाएगा तो फिर वो आंसर नहीं होगा। पिजन होल प्रिंसिपल क्या करता है कि सबसे बेस्ट केस क्या होगा जिसमें तुम हर हाल में वो चीज़ संभव होकर रहेगा।
ठीक है। तो ये पिजन होल प्रिंसिपल शॉर्टकट में समझे तो सपोज करो तुमने बैग में हाथ डाला और पहला निकाला, तो वो तो वाइट भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम निगेटिव लेके चलेंगे तो इस हिसाब से पिक वन में तो बात नहीं बनेगा, पिक वन में नहीं बात बनेगा। चलो अब दूसरा बार हाथ डाले, तो दूसरा बार हाथ डाले तो दो संभावना हो सकता है कि हाथ डाले एक दोनों रेड रेड आ जाए, दोनों वाइट वाइट आ जाए, ठीक है, या रेड और वाइट आ जाए। तो हो सकता है कि निगेटिव वाला केस हमको लेना है। तो तुमने हाथ डाला, एक फेस मास्क रेड आ गया, एक फेस मास्क वाइट आ गया, और क्वेश्चन में कह रहा है सेम कलर फेस मास्क होना चाहिए, नहीं दोनों सेम कलर होना चाहिए। तो निगेटिव लेना है कि मानिए चलो तुम्हारा किस्मत खराब है, तुमने बैग में हाथ डाला, दूसरा पिक में दो फेस मास्क निकाला, लेकिन वो दोनों अलग अलग कलर के आ गए, सेम कलर के नहीं आए। अब तुमने तीसरा बार डाला और 3 फेस मास्क निकाला, पिक 3 में 3 फेस मास्क, और 3 फेस मास्क निकालोगे तो डेफिनेटली है कि दो वो सेम कलर का तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं। तो मान लेते हैं एक वाइट आया, 2 रेड आ गया, या एक रेड आया, 2 वाइट आ गया। तो इस हिसाब से इस सिचुएशन में तुम हर हाल में पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा जो क्वेश्चन बोल रहा है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर 3 है, दिया हुआ भी है 3 दिया हुआ है, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है। आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट 2। द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट नीडेड इन अ क्लास टू गारंटी देयर आर एटलीस्ट 6 स्टूडेंट हुज बर्थडे फॉल इन द सेम मंथ, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा, सेम क्वेश्चन, एक साल में 12 महीने, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एटलीस्ट 6 बोल रहा है, कम से कम 6 होना चाहिए, तो पहले 5 का ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 12 महीने हैं, अब 5 स्टूडेंट है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 12 25 60 स्टूडेंट हो गया, और एटलीस्ट 6 कम से कम 6, तो एक आखिरी वाला को एक जोड़ दो तो 61 हो जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने नीडेड है क्लास में ताकि गारंटी किया जा सके कि कम से कम 6 स्टूडेंट हों जिनका बर्थडे एक ही महीने में फॉल करे। एक ही महीने में 6 स्टूडेंट का फॉल करने का संभावना क्या है, तो पहले जितना बोल रहा है उससे एक कम में मल्टीप्लाई कर दो, एक साल में 12 महीने इंटू 5 12 50 60, और एक आखिरी वाला का +1 कर दो तो 61, ये भी सही है। तो इस हिसाब से बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B started a business with investment of 4,500 and 2,700, ठीक है। फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए इन टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 256 रुपया में। तो अगर पढ़े हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। तो ए ने इन्वेस्टमेंट किया 45 रुपये का और बी ने इन्वेस्टमेंट किया 27 रुपये का, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट, तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, ठीक है। 9 3 27, 9 5 45, ठीक है। ये देखो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन है, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्रॉफिट जो है जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो आ गया 5:3, तो प्रॉफिट का भी रेशियो 5:3 हो गया। पूछ क्या रहा है, ए का प्रॉफिट पता करो, तो ए का 5 है, टोटल 8 है, 5/8 इंटू कितना 256 रुपया, तो 160 रुपये आ जाएगा। सॉल्व करने पर सी इज़ द राइट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, द डिफरेंस बिटवीन द CP and SP of an article is 240. If the profit is 20% then the SP is 1440। तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। सबसे पहले निकालो प्रॉफिट, SP माइनस CP 240, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट है 20%, SP है 1440। पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है ना, अच्छा। द डिफरेंस बिटवीन द CP एंड SP, देखो डिफरेंस दिया हुआ है CP और SP का, ये प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है ये, तो प्रॉफिट परसेंट को फ्रैक्शन में लिख दो, 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, ये CP होता है, CP अपॉन प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट हो गया, ठीक। तो CP कितना हो जाएगा,
एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी 240 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ये 240 है, तो सी पी कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, क्योंकि 1440 में से ये सी पी 1200 हो जाएगा। इस हिसाब से ये सही है, ठीक है, मैच कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट, if the CP of 10 DVD is equal to the SP of 7 DVD, then the gain percent is 42/6/7. तो CP of 10 DVD is equal to SP of 7, तो CP अपन SP का रेशियो ले लो 7/10, प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, SP माइनस CP 3/CP 3/7, तो 3/7 इज इक्वल टू 42/6/7। इस हिसाब से ये भी सही है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, the simple interest accrued on a sum of certain principal in 8 years at the rate of 13% per year is 6500. What would be the compound interest accrued on that principal at the rate of 8% per year in 2 years? तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 6500, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो पुट करो वैल्यू, 6500 इंटू पी इंटू आर दिया है 13%, टाइम दिया है 8/100। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 6250। अब आगे पढ़ो, पूछ रहा है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उस प्रिंसिपल पे अगर रेट 8% हो 2 साल के लिए। तो हमारे पास 6250 रुपये प्रिंसिपल है, 8% के हिसाब से 6250 का 8% का ब्याज आएगा, एक पहला साल 500, दूसरा साल 500 और कंपाउंड इंटरेस्ट 40, तो 1040, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। पहला, x/y 3/1 दिया हुआ है, देन x³ माइनस वाई क्यूब क्या होगा। देखो x बटे वाई 3/1 दिया हुआ है, तो x³ माइनस वाई क्यूब क्या होगा, कर दो x³, 3 का क्यूब करोगे 27, वाई का क्यूब करो 1, तो 27 माइनस 1 26, तो x³ माइनस वाई क्यूब तो 26 आ रहा है, यहाँ तो कुछ और दिया तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू वाई प्लस 12, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, x बटे वाई इज इक्वल टू 3/2, z बटे वाई इज इक्वल टू 1/3 और z प्लस एक्स इज इक्वल टू 44 दिया। क्या ये सही है, ये गलत है, चलो चेक करते हैं। x माइनस वाई 12 है, ठीक है, इसको भी छोड़ो। ये 3/2 है और यहाँ 1/3 है, तो यहाँ पे y जो है वो 2 है और यहाँ y 3 है, तो बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करेंगे, तो एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 12 से। क्यों 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिफरेंस भी तो सेम आना चाहिए ना, x माइनस वाई 12 आना चाहिए। देखो पहले तो यहाँ पे क्या करें, x माइनस वाई 12, तो यहाँ पे तो x 3 और यहाँ 2 है, तो 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस 2 1 होता है, तो 12 लाने के लिए 12 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 36/24, ये हो गया 36/24। अब यहाँ पे y 24 है, तो यहाँ पे भी y 24 लाना पड़ेगा, तो 8 इंटू 3 कर देंगे 24, तो यहाँ 8 के ऊपर भी 8, तो ये आ गया z बटे वाई 8/24, ठीक है। पूछ क्या रहा है, z प्लस एक्स, तो z है 8 और x है 36, तो 8 + 36 44, तो 44 मैच कर रहा है, तो ये सही है। ऑप्शन सी देखो, 3x इज इक्वल टू 8y एंड 5y इज इक्वल टू 9z, देन x/z इज इक्वल टू 72/15। चलो चेक करते हैं, तो x/y 8/3 हो जाएगा, ठीक, y/z 9/5 हो जाएगा, बराबर करो y को, यहाँ पे y 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई होता है, पढ़ा हमने रूल बचपन में ही, तो ये हो गया 24/9। तो x/z कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 24 और z हो जाएगा 5। ये 24/5 आया, लेकिन यहाँ तो 72/5। एक काम करो, बराबर करने के देखो, इंटू 3 करके देखो, 72/15, तो मैच कर रहा है, या इसको सिंप्लीफाई कर लो, बात बराबर है। इस हिसाब से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 11। इसको कैसे लिख सकते हो, एवरेज अगर ए बी सी का 11 है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी 11 इंटू 3 हो जाएगा, तो 33। एवरेज ऑफ सी डी ई 17 है, तो सी प्लस डी प्लस ई क्या हो जाएगा, 17 इंटू 3, 17 51। एवरेज ऑफ ई एन एफ इज 22, ई एन एफ का 22 है, तो 22 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 है, तो 44। एंड एवरेज ऑफ ई एन सी 17, तो सी प्लस सी 17 दूनी 34। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ए बी सी डी एन एफ का क्या हो जाता है, देखो ए बी सी का सम 33, ई एफ का सम 44,
और डी का वैल्यू हमको इधर से सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखो, सी और ई का वैल्यू दिया हुआ है 34, तो सी ई का वैल्यू पुट कर दो 34, तो 51 माइनस 34 करेंगे 17, तो डी का वैल्यू आ गया 17। तो सबको जोड़ दो, आ गया 94। टोटल कितने हैं, 3 3 6, तो 94/6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 47/3, और ये आ जाएगा 15/2/3। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग डायग्राम इफ द शेडेड एरिया इज 1/2 the area of triangle ABC, an angle ABC is right angle, then the length of line segment AD ये रहा AD लाइन सेगमेंट का क्या होगा लेंथ, चलो ये हमें बताना है। तो ये फिगर दिया हुआ है, ये x है, ये y है, ये z है, ये w है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, w² इज इक्वल टू x² प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। ये वाला लगाओ, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AD² इज इक्वल टू x² प्लस y स्क्वायर, x² प्लस y स्क्वायर। कह रहा है, आप क्वेश्चन में कह रहा है कि शेडेड एरिया यानी कि ट्रायंगल ABD, शेडेड एरिया ABD इज हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन में दिया हुआ है। वैल्यू पुट करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2, और इसका हाफ इंटू बेस x इंटू वाई प्लस जेड। यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा कट छट के y इज इक्वल टू जेड आ गया, y इज इक्वल टू जेड आ गया, यानी कि d मिड पॉइंट हो गया। d क्या हो गया, मिड पॉइंट। कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू जेड है, तो 2y² हो जाएगा, है कि नहीं। सॉल्व करते जाओ, सिंपल है, सॉल्व करते जाओ। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया w² माइनस 4y², so x² is equal to w² minus 4y²। ओके, AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, w² माइनस 3y²। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AD। तो हमने यहाँ पे लिखा है AD का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y²। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू x² की जगह ये वैल्यू पुट करो, और y² की जगह y² है, तो सॉल्व करो, ये आया, और यहाँ से फाइनली AD का लेंथ ये आया, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर x फॉर विच द इनइक्वालिटी x + 2 x + 5 ग्रेटर देन 40। हमें रेंज फाइंड करना, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ रियल नंबर x फॉर विच द इनइक्वालिटी x + 2 इंटू x + 5 ग्रेटर देन 40 वो होल्ड करता है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। देखो कुछ नहीं करो, सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, अब उसके बाद इसको सॉल्व करो, इसको 0 करो, ठीक है। अब एक काम करो, इसको 0 मान लो, ठीक, और ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे लगा दो श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। श्रीधाराचार्य फॉर्मूला याद होना चाहिए, इफ x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2, 10th क्लास में पढ़ा था। अब इस प्रोसेस से इसको सॉल्व करो, ये पता है ना, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू -30, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, तो ये 3 और -10 आ रहा है, ठीक, यानी कि x ग्रेटर देन है 3 से और x लेस देन है -10 से। जैसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो -∞ से लेके -10 तक, और फिर 3 से लेके इन्फिनिटी तक रेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ रूम 15 मीटर 91 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर 46 सेंटीमीटर ब्रॉड इज। कितना कम से कम टाइल हमें, जैसे सपोज करो तुम्हारा एक रूम है, ठीक है, उस रूम का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक, तुम्हारे पास एक रूम है, जैसे कि जो मिस्त्री लोग होते हैं वो कैसे अनुमान लगाते हैं कि इस रूम में कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसका तरीका ये है निकालने का। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक रूम है, उसका लेंथ, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक, और पूछ रहा है कि इसमें सबसे कम से कम कितना टाइल्स लगेगा इस रूम में
लगाने में, मतलब कितना टाइल्स लगेगा इस रूम में निकालने का। मिनिमम टाइल्स, पैसा कम है भाई, हमको कम से कम टाइल्स लेना और पूरे रूम में लगा देना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक। अब एक काम करो, दोनों के HCF निकाल दो। कैसे निकालते हैं, कितना कम से कम टाइम लगेगा निकालने के लिए, HCF निकालो। 1591 और 946 का HCF डिवीज़न मेथड से निकाल लो। तो डिवीज़न मेथड से निकालने के बाद आ रहा है यहाँ पे हमारा HCF 43, कितना आ रहा है, 43। अब ये मत कह देना कि 43 टाइल्स लगेगा, नहीं। अब एक काम करो, जो लेंथ है यानी कि लंबाई है, लंबाई को डिवाइड कर दो HCF से। जब हम लंबाई को HCF से डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा, और जब हम चौड़ाई को यानी कि ब्रेथ को HCF से डिवाइड करेंगे तो 37 आ जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उतना टाइल्स लगेगा। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक रूम है, ठीक, उसका कुछ लंबाई और उसका कुछ चौड़ाई है, और तुम्हें पूछा जा रहा है कितना कम से कम टाइल्स लगेगा इस रूम में। तो क्या करो, सबसे पहले तो लंबाई चौड़ाई का HCF निकाल लो, और जो HCF है उसको लंबाई से डिवाइड कर दो और चौड़ाई से डिवाइड करके उसको दोनों गुना कर दो, तुम्हारा कितना टाइल्स लगेगा ये पता चल जाएगा। समझ में आया? तो ये तरीके से हम एक निकाल सकते हैं। एक टेप मीटर लाओ, टेप मीटर को पकड़ो, उससे नापो लंबाई चौड़ाई, HCF निकालो, HCF से लंबाई चौड़ाई को डिवाइड करो और गुना कर दो, तो तुम्हारा कितना टाइल्स लगेगा वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल ट्रैवल्ड 300 किलोमीटर बाई बस and 200 kilometer by taxi. For this it took him 5 hours and 30 minutes. However, if he travels 260 kilometer by bus and 240 kilometer by taxi, then he takes 6 minutes more. The speed of the bus is. तो ये तो तुम्हारा लेस मोर वाला क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूँ। अनिल लड़का जो है वो क्या करता है कि 300 किलोमीटर बस से ट्रैवल कर लेता है और 200 किलोमीटर टैक्सी से ट्रैवल कर लेता है, और इस काम के लिए उसको लगते हैं 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं, ठीक। लेकिन अगर वो 260 किलोमीटर बस से जाता है और 240 किलोमीटर टैक्सी से जाता है तो उसको 6 मिनट ज़्यादा लगते। तो इस हिसाब से बताओ कि बस का स्पीड क्या होगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, चल चेक करते हैं। फाइव आवर्स 30 मिनट लगता है, यानी कि 5.5 घंटा लगता है। तो हमने पढ़ा है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 300 किलोमीटर बस से जाता है, ठीक है, और 200 किलोमीटर टैक्सी से जाता है, और इसके लिए टोटल इसको कितना लगता है, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि काम कर लेते हैं, मान लेते हैं पूछ कर रहा क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द बस, तो मान लेते हैं स्पीड ऑफ द बस 100 किलोमीटर, ऑप्शन ए मान लेते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल 100 है तो चलो 100 मान लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 300 किलोमीटर बट्टे 100, तो 3 घंटा लगेगा। और 200 किलोमीटर टैक्सी, तो 200 बट्टे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ टैक्सी में नहीं पता तो स्पीड ऑफ टैक्सी एस अपॉन टी लेते हैं, और ये दिया हुआ 5.5 घंटे नहीं 5.5। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो स्पीड ऑफ टैक्सी आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर ये अगला स्टेटमेंट में सेटिस्फाई कर जाता है तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगर नहीं सेटिस्फाई करता तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक। 260 किलोमीटर बाई बस, तो 260 किलोमीटर बाई बस मतलब कितना घंटा लग गया, 2.6 आवर। एंड 240 किलोमीटर बाई टैक्सी, तो 240 को 80 डिवाइड करोगे तो 3 घंटा, तो टोटल कितना हो गया 5.6 आवर। और क्या राइट टेक्स 6 मिनट्स मोर, तो पहले 5.5 लगता था, अब 5.6 लग रहा है। देखो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 0.1 घंटा में 6 मिनट, तो 5.6 आवर को जब कन्वर्ट करोगे तो 5 घंटा 36 मिनट होगा। और यहाँ पे भी वही सेम हो जा रहा है, तो सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए, तो ऑप्शन हम इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और वो वाला मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, उतना टाइम नहीं है अपने पास। 19 स्टेटमेंट 1,
If the roots of a quadratic equation are 2 and 3, then the equation is x square minus 5x minus 6 is equal to 0. अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 2 और 3 है तो इसको ऐसे लिख दो, 2 और 3 मतलब x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, यहाँ माइनस 6 है, तो इस हिसाब से ये गलत हो गया. अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 पढ़ो. इफ द रूट्स ऑफ दिस 4x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तब k लेस देन इक्वल टू -4 और k ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो देखो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का फॉर्मूला अगर याद हो तभी ये क्वेश्चन बनेगा. उसका फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0. अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो तो मतलब डिटर्मिनेंट जो होगा 0 से बड़ा होगा, उसका फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0. तो b स्क्वायर यानी कि 9k स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a कितना है 4 है और c कितना है 9 है, ग्रेटर देन 0. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो k 4 यानी k ग्रेटर देन 4 एंड k लेस देन -4. तो यहाँ पर तो उल्टा दिया हुआ है, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा. तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 243 का पावर 0.16 इंटू 9 का पावर 0.1 इज इक्वल टू 0.3. चलो देखते हैं. 243 का मतलब होता है 3 टू द पावर 5, 9 का 3 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करो तो ये कितना 16 यानी कि 3 का पावर 0.8 और ये 3 का पावर 0.2, तो ये जोड़ के 3 का पावर 1 है और ये आंसर आ जाएगा 3 और यहाँ लिखा हुआ 0.3, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो स्टेटमेंट 1 गलत है. स्टेटमेंट 2 पढ़ो. इफ 3.105 इंटू 10 टू द पावर p इज इक्वल टू 0.00239 प्लस 0.000715 देन p इज इक्वल टू -3. चलो चेक करते हैं. 3.105 इंटू 10 टू द पावर p है, तो चलो चेक कर लेते हैं. अगर p का पावर -3 होने पे क्या है, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वैल्यू पुट करके चेक कर लो. 10 टू द पावर -3, तो ये करेंगे क्या बन जाएगा 0.003105. ठीक है. अब ये दोनों को जोड़ो और देखो क्या ये दोनों के इक्वल आ रहा है. अगर ये दोनों को जोड़ने के बाद इसके बराबर आ जाएगा तो सही है. तो हमने इसको जोड़ा और ये बराबर आ गया, तो इस हिसाब से ये सही है. तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब रीजनिंग में आ गए हम लोग. 21 फुट स्केटबोर्ड और रोबोट. जैसे पैर जो होते हैं हम लोग पैर से कौन सा यूज़ करते हैं, स्केटबोर्ड को यूज़ करते हैं. तो और क्या होता है, और होता है जो नाव का जो होता है ना, जिससे नाव को चलाया जाता है, उसको और कहते हैं. तो और कहाँ इस्तेमाल होता है, रोबोट में इस्तेमाल होता है. फुट स्केटबोर्ड में इस्तेमाल होता है, तो और रोबोट में इस्तेमाल होता है. आगे. इन एन एक्सटेंडेड फैमिली ए इज़ मैरिड टू बी. ओके, ये देखो ए की शादी करवा दी है बी से. ठीक है. एंड हैज़ 2 सन्स सी एंड डी, और इन दोनों के 2 बच्चे हैं. सन्स मतलब लड़के होते हैं, तो सी और डी लड़के हुए. ठीक. द यंगर सन डी, ये यंगर सन है, छोटा बेटा है डी, इज़ मैरिड टू ई, इसकी पत्नी डी की पत्नी ई है. एफ हैज़ 2 चिल्ड्रन, एफ के 2 बच्चे ई एंड जी. एफ के 2 बच्चे हैं, तो एफ के 2 बच्चे ई और जी. ठीक. हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, जी और डी का क्या संबंध है. ये देखो ये पति पत्नी है, ये पत्नी का भाई या बहन जो है, तो इसमें क्या संबंध है, ब्रदर इन लॉ का संबंध है. क्योंकि ये जो है आदमी है, तो ये क्या हो जाएगा ब्रदर इन लॉ लग जाएगा, इन लॉज हो जाएगा, तो इन लॉज हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्यू मेन वेयर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ इन अ रो. Sunil is 16 to the left of Ram, who is 18 from the right. Jack is 11 from the left and is also 4 to the right of Sunil. How many men were sitting in a row? कितने रो में आदमी बैठे हुए थे. तो ये सिंपल क्वेश्चन होता है, ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है, तुरंत हो जाएगा. लेट्स सॉल्व इट. एक लाइन खींचो, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट. अब पढ़ो पहला स्टेटमेंट पढ़ो. सुनील इज 16 टू द लेफ्ट ऑफ राम, हु इज 18 फ्रॉम द राइट. तो राम जो है वो 18वां है राइट से, तो राइट से राम 18 है, राइट से राम 18 है. ठीक है. और सुनील इज 16 टू द लेफ्ट ऑफ राम, राम के लेफ्ट यानी कि इधर साइड उससे 16th है, यानी कि यहाँ से 16th. ठीक. जैक इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट, जैक जो है लेफ्ट से 11th है. ये देखो 11th है लेफ्ट से,
ऑल्सो फोर्थ फ्रॉम द राइट ऑफ सुनील, सुनील के फोर्थ है राइट, सुनील का राइट इधर हो गया, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे जैक, ठीक। हाउ मेनी मेन वेयर सिटिंग इन अ रो, तो इसमें टोटल कितने लोग हैं, इसका एक ही तरीका, सबको एक ही पॉइंट पर ले आओ, ठीक है। तो ये 11th है और ये 4 प्लेसेस पहले कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 - 4 7, और यहाँ तक है हमारा ये 18 और ये 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 18 + 16, यहाँ से इस पॉइंट से लेके तो 34, तो ये 34 और ये 7, तो 34 + 7 कर लो, 41 - 1 कर दो, 40 लास्ट में मालूम है ना कि 2 पॉइंट को एक ही बार काउंट हो जाता है तो इसलिए -1 करते हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग, चैप्टर कंटेंट एक्सरसाइज बुक, सिंपल क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करूंगा, इसका ऑड वन आउट होगा बुक, पॉज इट एंड थिंक ऑफ इट। इफ rascal is written as -22 then simple is written as देखो rascal का सबसे इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हर लेटर का नंबर पता होना चाहिए, तो नंबर लिख दो, RSCL का नंबर लिखो, R का 18, A का 1, S का 19, C का 3, A का 1, L का 12, ठीक। अभी -22 लाना है, तो एक काम करो कि जो ऑड वाला है 18 19 1 को जोड़ दो और इवन वाला को माइनस कर दो, तो चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। या ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, 18 - 1, 18 में से 1 घटा दो 17, 19 में से 3 घटा दो 16, और 1 में से -12 घटा दो -11, तो ये हो गया 17 + 16 17 5 22 आया, और 22 जो है उसको निगेटिव कर दो, -22 कर दो। सेम इसी प्रकार सिंपल का कोड लिखो, जो आंसर आएगा -14 आएगा, उसको निगेटिव कर दो तो 14 आंसर हो जाएगा, ठीक, सिंपल है। नेक्स्ट, दीप्ति वॉज वॉकिंग विथ हर हस्बैंड राजीव, ये रही दीप्ति लड़की और इसका हस्बैंड रहा राजीव। दे मेट अ वुमेन मिल्ली, वो लोग मिल्ली से मुलाकात की। दीप्ति इंट्रोड्यूस मिल्ली टू राजीव एंड कहा, मिलवाया और कहा, हर ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो दीप्ति कहती है कि उसके ग्रैंडफादर, तो पहले दीप्ति ग्रैंडफादर, ये रहे दीप्ति के पापा, ये रहे दीप्ति के दादाजी, ठीक। कह रही है दीप्ति, हर ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ये रहे ग्रैंडफादर, उसके ओनली सन ये रहे, ठीक। तो मिल्ली के जो भाई हैं, ये देखो मिल्ली उसका भाई के पिता, मिल्ली के भाई के जो पिता हैं वो एकमात्र बेटे हैं, मिल्ली के भाई के पिता, ये लोग मिल्ली के भाई के पिता, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे दादा के एकमात्र पिता, तो यानी कि भाई बहन हो गया ना, सिंपल, तो सिस्टर। काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर, हमें ट्राइंगल गिनने हैं, चलो गिनते हैं कितने हैं। सबसे पहले ऐसे काउंट करो, 1 2, देखो 1 2 और एक बड़ा वाला 3, तो ये हो गया 3, और इधर साइड भी 3, 6 हो गया, 7 8 9 10, ठीक, 10 हो गया, और एक 11 और ये एक 12, सिंपल। ए इज द सन ऑफ बी, ए जो है वो बी का बेटा है, अभी नहीं पता ए क्या का जेंडर क्या है, ए बेटा है बी का, ए इज द सन ऑफ बी, ए का तो जेंडर पता चल गया, सन है यानी ए मेल है, ठीक है। उस मदर इज सी, बी ए की माँ जो है वो सी है, बी सी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, डी जो है वो ई का हस्बैंड है। द ग्रैंड डॉटर ऑफ सी, सी का ग्रैंड डॉटर है वो, यानी कि ये देखो ग्रैंड डॉटर ई हो गई, सी की ई ग्रैंड डॉटर। इफ एफ इज द वाइफ ऑफ ए, एफ वाइफ है ए की, हाउ इज एफ फादर इन लॉ, एफ के जो फादर इन लॉ हैं वो रिलेटेड हैं टू डीज डॉटर, डी की डॉटर ये है। एफ के फादर इन लॉ, एफ के फादर इन लॉस कौन है, एफ के फादर इन लॉ कौन है, देखो एफ इसके हस्बैंड, उसके ससुर, ये फादर इन लॉ मतलब ससुर होता है, तो बी,
तो बी और डी में क्या संबंध है? तो डी के बेटी में क्या संबंध है? तो ग्रैंड फादर हो गया, और क्या हो गया? ग्रेट ग्रैंड फादर, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल लीव्स हर होम्स एंड वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मान लेते लड़की घर यहाँ है, ये देखो ये रहा लड़की घर। एक लड़की अपना घर को छोड़ती है और 30 मीटर तक नॉर्थ जाती है, ठीक। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाती है। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? इधर साइड, ठीक है, इधर साइड घूम गई और 30 मीटर चलती है, चल रही है देखो 30 मीटर। देन शी टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। अब फिर वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है, यानी कि यहाँ आ जाती है और फिर 30 मीटर चलती है। देन शी टर्न्स 90 डिग्री, 90 डिग्री यहीं से मारती है छलांग और 60 मीटर चलती है। देन शी टर्न्स टुवर्ड्स हर होम। फिर उसके बाद वो अपने घर की तरफ मुड़ जाती है, इधर से इसका घर मुड़ गई, ठीक, ईस्ट और साउथ के बीच में मुड़ गई। किस डायरेक्शन में वो वॉक कर रही है? साउथ और ईस्ट के बीच में कहीं डायरेक्शन कर रही है, तो ऑप्शन बी, सिंपल, बस डायग्राम बनाओ, सॉल्व कर डालो। स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है, शुड द कॉटेज इंडस्ट्री बी शिफ्टेड टू अर्बन सिटीज फ्रॉम विलेजेस। आर्गुमेंट 1, नो द रूरल पॉपुलेशन विल डाई ऑफ हंगर। ये गलत है, सोच के देखो। दूसरा, यस रूरल पीपल विल बी इनकरेज टू अडॉप्ट फार्मिंग एज देयर लाइवलीहुड। ये भी गलत है, दोनों का दोनों गलत है। कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री को शहर से निकाले गांव में भेज देना चाहिए। नहीं, गांव से निकाल के, कह रहा है कि क्या कॉटेज इंडस्ट्री को गांव से निकाल के शहर में भेजना चाहिए। तो आर्गुमेंट 1 कहता नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर रूरल पॉपुलेशन भूख से मर जाएगा। तो कॉटेज इंडस्ट्री खाने का इंडस्ट्री थोड़ा ना हो, तो कपड़ा का इंडस्ट्री है, खाने का क्या संबंध है? ये गलत हो गया। दूसरा, यस रूरल पीपल विल इनकरेज टू अडॉप्ट फार्मिंग एज देयर लाइवलीहुड। ये कोई मतलब नहीं है, खेती तो कर ही रहे वो, इसका भी कोई संबंध है नहीं। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी। क्वेश्चन, a word is represented by only one set of number as given in any of the option. The set of numbers given in the options are represented by two classes of alphabets as in the two matrices. A letter from matrices are represented first by row and then by its column number. Identify the set of word. देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ठीक है। जैसे हम पूछे कि 0 0, अगर हम तुमको नंबर दे दे 0 0, पूछे कौन सा लेटर है, तो 0 0 पर डी। अगर हम तुमसे पूछे कि 3 4 पे कौन सा नंबर, तो ये 3 और ये 4, 3 4 पे नंबर है बी। कौन सा नंबर है? बी। अगर हम पूछे 9 9 पे कौन सा नंबर है, तो 9 और ये 9 9 पे नंबर है एम, ठीक है। तो ये तो पूछ रहा है रेन का कोड क्या होगा, तो देखो आर। पहले ढूंढो, ऑप्शन से पकड़ लो, सबसे अच्छा ऑप्शन 57। देखो 57, तो ये रहा 5, ये रहा 7, 5 7, 5 7 पे आर, सही है। फिर 12 चेक करो, 12 1 और 2 आर ए, ठीक है। 31 चेक करो, 3 और 1 आई, आर ए आई। और फिर चेक करो 56, 5 और 6 एन, रे सेटिस्फाई कर रहा है। पूछ रहा है कि ये सारे में से कौन मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है, तो देखो ये रडन, ये राउ, ये रेनी, रेन एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो ऑप्शन ए। तो रेन कौन सा बना रहा है? ऑप्शन ए बना रहा है। नेक्स्ट टर्म सीरीज में बताना है, देखो सी एक छोड़ के डी, फिर ई, फिर एफ जी एच आई, आई से शुरू, आई से एक ही ऑप्शन, ऑप्शन बी, सिंपल। नेक्स्ट, सम स्टूडेंट वेयर सिटिंग इन अ रो, शीला वॉज सिटिंग 12 फ्रॉम द राइट। शीला जो थी राइट एंड से 12वें नंबर पे थी और वीना जो थी तीसरे नंबर थी लेफ्ट की तरफ से। 15 स्टूडेंट उनके बीच में थे, ठीक। कितने बच्चे बैठे थे? देखो 15 ये रहे, ठीक। एक काम करो, 15 ये और 3 ये, तो 15 16 17 18 और यहाँ तक एक पॉइंट ले लो 19। 15 3 18 और इस पॉइंट पे आएंगे तो 19, इधर से 19 इधर से 12, 19 12 कितना हो जाएगा? 29 30 31 माइनस 1, 30 आंसर हो जाएगा, सिंपल। 15 इनके बीच में है, ठीक है। 15 ये हो गया बीच में है, तो 15 इधर, 16 17 18 और एक ये पॉइंट 19, तो 19 हो गया, सिंपल। लॉजिक से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स ऐड टू द ब्रांड वैल्यू एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ सही है, कारण मोस्ट सेलिब्रिटी आर रिच इनफ टू अफोर्ड द बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स इन एनी गिवन कैटेगरी, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी। If the given
interchanges are made in sign and number, which one of the following four equation would be correct? अगर हम माइनस के जगह इंटू कर दें तो कौन सा, और 3 की जगह 6 कर दें, कह रहा है अगर हम माइनस के जगह इंटू साइन इस्तेमाल करें और 3 की जगह 6 इस्तेमाल करें तो कौन सा इक्वेशन सही होगा? ऑप्शन डी ट्राई करते हैं। देखो माइनस की जगह इंटू कर दिए तो 3 6 जा 18, ठीक है, और इंटू की जगह माइनस तो 6 3 6 जा 18, 18 माइनस 8 10, 10 इज इक्वल टू 10, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिंपल। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर्गुमेंट है। स्टेटमेंट, शुड स्मोकिंग बी प्रोहिबिटेड, क्या सुट्टा फूकना को बंद कर देना चाहिए? पहला आर्गुमेंट है यस इट इज़ रॉन्ग टू स्मोक अवे मिलियंस ऑफ मनी, हाँ ये गलत बात है कि हम करोड़ों रुपया सुट्टा फूकने में उड़ा दें। पहला नंबर तो सुट्टा बहुत सस्ता आता है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो करोड़ों रुपये तो खर्च नहीं होंगे, तो ये आर्गुमेंट गलत है। दूसरा आर्गुमेंट, नो इट विल थ्रो थाउजेंड ऑफ वर्कर्स इन टोबैको इंडस्ट्री आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सही बात है। अगर आप टोबैको को बंद कर दोगे तो जो बहुत लोग का नौकरी फैमिली बहुत चीज़ इससे चल रहा है तो वो बंद हो जाएगा। तो बेहतर क्या है कि जिसको पीने का इच्छा हो पिए, जिसको नहीं इच्छा है ना पिए, बंद करने का कोई मतलब है नहीं। इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस 37 क्वेश्चन नंबर को मैं पढ़ूंगा नहीं, सिंपली इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में समझा देता हूँ। यहाँ पे 1 में 4 ऑप्शन दिए हुए, बी में 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि वीट ब्रिक दिया हुआ है, तुमको बेसिकली 1 में से और 2 में से इस तरीके से संबंध करना है कि एक रिलेशन बन जाए, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े उस हिसाब से, नहीं पहला का तीसरे के साथ रिलेशन बन जाए और दूसरा का चौथे के साथ रिलेशन बन जाए। देखो वीट में से, वीट के लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे इसमें से? क्या वीट के लिए सीरियल सेलेक्ट करोगे, फील्ड सेलेक्ट करोगे, ब्रेड करोगे कि फार्मर करोगे? चलो मान लेते हैं वीट का सीरियल से कोई संबंध कुछ खास है नहीं, वीट का फील्ड, हाँ वीट को फील्ड में उगाया जाता है, तो ब्रिक को कहाँ उगाया जाता है? ब्रिक को तो किल्न शायद हो सकता है भी। वीट फार्मर उगाता है, ठीक है, ब्रिक कौन बनाता है? ये मैच नहीं कर रहा है। मान चलो वीट का ब्रेड ले लेते हैं, तो वीट से ब्रेड बनता है, सही बात है, और ब्रिक से गेहूं से ब्रेड बनता है। वीट जो है ब्रेड, सॉरी इस तरीके समझो कि ब्रेड जो है वो वीट से बनता है, क्ले किससे बनता है? ब्रिक जो है क्ले से बनता है। वीट जो है, क्या ये सही जा रहा है? सही सोच रहे? ब्रिक से बिल्डिंग बन सकता है, हाँ ये भी सही है, बिल्डिंग हो सकता है। इन ब्रिक क्ले से बनता है, वीट और ब्रेड में संबंध है और ब्रिक और क्ले में संबंध है। क्ले मिट्टी से ही ईटा बनता है और ब्रेड जो है वो वीट से बनता है, ये सही, ज़्यादा सही है, ऑप्शन सी। 38 इजी क्वेश्चन है। ऑल स्वीट्स थिंग्स आर फ्लूइड, सारा स्वीट का स्वीट थिंग्स जो है वो क्या है? स्वीट थिंग्स फ्लूइड है। वेन डायग्राम पढ़ा हो तो बन जाएगा। सम फ्लूइड्स आर कलर्ड थिंग्स, कुछ फ्लूइड जो है वो कलर्ड थिंग, इस हिसाब से डायग्राम बनेगा। और ऑप्शन ए बी सी डी पूछ रहा कौन सा सही है? सम स्वीट थिंग्स आर कलर्ड थिंग्स गलत, सम स्वीट थिंग्स आर फ्लूइड्स गलत, ऑल फ्लूइड्स आर स्वीट थिंग गलत, सम फ्लूइड्स आर स्वीट थिंग्स, कुछ फ्लूइड का हिस्सा जो है, कह रहा है कि सम फ्लूइड्स, कुछ फ्लूइड्स आर स्वीट थिंग्स, फ्लूइड्स का कुछ हिस्सा, ये जो है फ्लूइड का कुछ हिस्सा वो स्वीट थिंग्स है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी स्क्वायर्स डज द फिगर हैव, कितने स्क्वायर है इसमें? काउंट करो, सबसे पहले छोटे वाले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, ठीक। अब ये काउंट करो, 7 और ये 8, तो 8 6 7 8 और एक ये भी तो है 9, तो आंसर बी। हमें यहाँ पे मिसिंग वर्ड फाइंड करना है, क्या होगा? लॉजिक लगाओ, सोचो, पॉज करके थोड़ा सोचो क्वेश्चन को। इसमें लॉजिक इस प्रकार से लगेगा, 4 का स्क्वायर करो और 3 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर किए कितना है? 16, 3 का स्क्वायर किए 9, तो 16 9 25, 25 दिया 75, सिंपल। 7 का स्क्वायर करो, सॉरी 11 का, पहले इसको करते हैं, 11 का स्क्वायर करो 121, 8 का स्क्वायर करो 64, 121 प्लस 64 जोड़ दो 185 और इसको इंटू 3 कर दो। इस तरह 7 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर करो,
ये दोनों को जोड़ दो, इंटू 3 कर दो। इसी प्रकार 13 का स्क्वायर करो 169, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दो 194 इंटू 3 582, ऑप्शन सी। इस हिसाब से हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।